So hello everyone, in this video I'll be dealing about the basics of Ayurveda under Padarth Vigyan for exam point of view. ठीक है, तो मैं exam point of view, written exam में कैसे लिखना है to gain maximum marks. So this comes under your SAQ and even for your internal marks it can come as an LAQ. ऊपर just to write your exam, but it is enough for your exam point of view. ठीक है, I'll be providing my notes on my Instagram account. I will be adding that link in this post. Okay. So in this format, first is your introduction. मतलब अगर आया, so you're going to write Ayurveda is a subtopic of this Ved blah blah blah. I'll tell that later. Then you're going to come to your main body. Your main body will conduct. जब हम पदार्थ विज्ञान लिख रहे हैं तो वहाँ पे you need to write निरुक्ति, then the श्लोक, उसके लक्षण, a lot of things, and then to make your answer perfect, you're going to write a conclusion. मतलब तुमने you're going to tell the teacher कि भाई मैंने मेरा आंसर कंप्लीट कर दिया है, और ये भी बात कि मैंने जल्दी जल्दी नहीं, मेरा आंसर कंप्लीट है, मुझे जो पॉइंट्स लिखने हैं मैंने अच्छे से लिख दिए हैं. Okay, and in that बीच वाला from introduction to your conclusion you're going to write about what are the various points that come into that topic. Okay, so now let me start about this topic, that is Ayurveda under Padarth Vigyan. What you have to write for your examination? First you're going to write a simple introduction, that is Ayurveda is a Upaved of Atharva Ved. ठीक है, there are four main Ved, that is Rigaved, Samaved and Yajurved and Atharva Ved. ठीक है, तो इसके अंडर क्या आ रहा है कि अथर्व वेद के अंडर आ रहा है आयुर्वेद. बोथ द नॉलेजेस, ठीक है, इसको बोलते हैं कि यूनिक सिस्टम दैट टॉक्स अबाउट बोथ द नॉलेजेस. व्हाट काइंड ऑफ नॉलेजेस? ठीक है, इसमें क्या आता है कि मोक्ष को कैसे प्राप्त करना है, इसके बारे में भी बताया गया है. So now we are going to start our main part of the body of the answer, that is निरुक्ति. What is Ayurveda? इसकी निरुक्ति कैसे है? विद ज्ञानी विद लाभी. मतलब विद ज्ञानी मतलब क्या कि जिससे उस तंत्र मतलब टू नो. ठीक है, विद लाभी मतलब क्या कि जिससे हमें गेन हो रहा है, मतलब आयुर्वेद से हमें जानकारी, मतलब हमें ज्ञान मिल रहा है और इससे हमें लाभ भी मिल रहा है. ठीक है, ऑन अ सिंपल बेसिक very low level to understand. ठीक है, therefore Ayurveda means the knowledge of lifespan and means to gain the lifespan. This is the translation that you have to write in a mere point of view. ठीक है, then we are going to write according to different आचार्य to make sure to tell the student that हमें सब कुछ पता है. Okay, then according to सुश्रुत समता, आयुः अस्मिन् विद्यते अनेन वा आयुर्विद्यन्ते इति आयुर्वेदः. सुश्रुत सूत्र स्थान 1 14th श्लोक. इसमें क्या, आयुर्वेद इज अ ट्रीटाइज दैट deliberates on आयु and by following the Ayurveda method a person can gain life. This method is of twofold, which is avoiding apatya and following patya. Now point comes, what is patya? For you to understand if you are new, पथ्य वो है जो तुम्हारे स्रोतों के लिए अच्छा है. इन पॉइंट ऑफ व्यू पथ्य इज समथिंग दैट इज गुड फॉर यू. ओके, ऑन अ लो लेवल. नाउ अकॉर्डिंग टू चरक संहिता, हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदस्य उच्यते. Ayurveda is a shastra that deliberates on four types of ayu, that is hita ayu, ahita ayu, sukha ayu and dukha ayu. ठीक है, we will be dealing about this on the next video, what this each ayu means. Then you're going to write a little bit more once you have written that following, obviously to increase the space, then later. In other words, Ayurveda is a knowledge of beneficial and non-beneficial entities with the measurements of maintenance of the life. This translation is the translation that your teacher is going to expect from you. Then Ayurveda is therefore a complex system of maintaining the health as well as the treatment of the diseased. Every aspect of a health is related directly or indirectly with Ayurveda. Now, these are the simple things that Acharya said. Now we are going to go to like इसकी निरुक्ति properly, इसका word का meaning क्या है. Okay, now आयुर्विद्यते न्यायते अनेन इति न्यायते अनेन इति आयुर्वेदः. Ayurveda is the which provides the knowledge of life. Same thing, just two different. Over here you need to know at least two shloks. Or you can go for hitahitam sukham dukkam ayustasya hitahitam, that wala shlok.
टू आर मोर देन इनफ फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि उसकी निरुक्ति या फिर उसके बारे में क्या है. नाउ व्हाट इज द प्रयोजन ऑफ आयुर्वेद? लिसन टू दिस टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंटली, क्योंकि यही सेपरेटली एलक्यू के लिए भी आ सकता है. नाउ व्हाट इज द प्रयोजन? धातु साम्यम क्रिया च उक्तम तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम. नाउ यहाँ पे क्या है? तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम. तंत्र इज अ सिनोनिम ऑफ आयुर्वेद. जो therefore जो तंत्र का प्रयोजन है वही आयुर्वेद का प्रयोजन. सो व्हाट इज द प्रयोजन ऑफ तंत्र? therefore व्हाट इज द प्रयोजन ऑफ आयुर्वेद? धातु साम्यम क्रिया च उत्तम. धातु साम्य मतलब क्या? जो हमारे सप्त धातु है, जो हमारे दोष है या फिर जो हमारे मन, उनको सम अवस्था में रखना, वो हमारा प्रयोजन है. इन शॉर्ट स्वास्थ्य को मेंटेन करना इज आवर प्रयोजन. फाइन. नाउ वी आर गोइंग टू डील विथ व्हाट आर द टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू प्रयोजन जो हमारे आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने कहे गए. ओवर हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इन्होंने एक ही चीज बोली है बट इन अ डिफरेंट सीक्वेंस. सो सीक्वेंस मैटर्स. उन्होंने अगर डिफरेंट सीक्वेंस बोला है तो उनके तंत्र का या फिर उनके संहिता का वो स्पेसिफिकली डिफरेंट लेके चल रहे हैं, वो एक कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं. ठीक है. सो आचार्य चरक ने क्या कहा? प्रयोजनम च अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम वा. फिर देयर आर टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ओवर हियर. स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम मतलब जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य का रक्षण करना. आतुरस्य विकार प्रशमनम मतलब जो डिजीज्ड है, मतलब जो आतुर है, जो रोगी है, उसको स्वास्थ्य लाना, मतलब उसकी जो साम्य अवस्था नहीं है उसको साम्य अवस्था में लाना. धातु साम्यम क्रिया चोक्तम तंत्रस्य अस्य प्रयोजनम. ठीक है. सो आचार्य चरक क्या कहते हैं कि जो स्वस्थ इंसान है उसके स्वास्थ्य को मेंटेन करो. कैसे? पथ्य आहार देके उसको, जो ऋतु वाइज जो शोधन कहा गया है, जो और एक ऋतुचर्या है, दिनचर्या है. What are these? These are measures जिससे तुम अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकते हो. स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण में ये पॉइंट भी तुम लिख सकते हो. इट टेल्स द टीचर कि तुम्हारा नॉलेज कितना है. देन आतुरस्य विकार प्रशमन. यू कैन टेल यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट ले सके. वात व्याधि है, पित्त व्याधि है, कफ व्याधि, तो उनमें शमन औषध कौन सी, शोधन औषध कौन सी है, या फिर इतना लिख दो. इट्स मोर देन इनफ. देन व्हाट इज द पॉइंट अकॉर्डिंग टू सुश्रुत संहिता? व्याधि उपसृष्टानां व्याधि परिमोक्षः स्वस्थस्य रक्षणं च. So Ayurveda has two main objectives, that is vyadhi upasrushtanam vyadhi parimokshah. See, try to get that word. vyadhi मतलब यहाँ पे हम पहले सीक्वेंस में किसकी बात कर रहे हैं? We are talking about the vyadhi, मतलब जो आतुर है, मतलब जो रोगी है उसको, मतलब जो रोग है उसको एलिवेट करना या फिर उसको निकालना या फिर उसको क्योर करना. धातु जो अपनी साम्य अवस्था में नहीं है, जो स्वस्थ नहीं है, उसको पहले देखो. आचार्य सुश्रुत क्या कह रहे हैं कि उस जो आतुर है, जो रोगी है, उसको पहले देखो. बट आचार्य चरक क्या कह रहे हैं कि वो बोल रहे हैं जो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, मतलब जो स्वस्थ इंसान है उसके स्वास्थ्य को पहले मेंटेन करो. ठीक है. फिर स्वस्थस्य रक्षणम च मतलब पहले तुमने व्याधि उपसृष्टानाम व्याधि परिमोक्षः किया, उसके बाद तुम्हें क्या करना है? स्वस्थस्य रक्षणम च मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको देखो. These two people are saying the same thing, but they are saying in a different sequence. स्मॉल से स्मॉल, जो छोटी से छोटी चीजें है ना यहाँ पे मैटर करती है. अगर उन्होंने सीक्वेंस बदला मतलब वो डिफरेंट तरह से सोच सकते हैं. सिंपल. Now, eternity of Ayurveda. This is another subtopic that comes under Ayurveda for Padarthvigyana. Eternity of Ayurveda क्या है? So अयम आयुर्वेदः शाश्वतो निर्देशयेत् अनादित्वात् स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात् भाव स्वभाव नित्यत्वात्. चरक संहिता सूत्र स्थान 30वां अध्याय 27 श्लोक. ठीक है. सो आयुर्वेद इज इटर्नल बिकॉज ऑफ अनादित्वात्, मतलब इसका कोई बिगनिंग ही नहीं है. सो देन वी से अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1, तो हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मा स्मृत्वायुर्वेदम प्रजापतिम अजिग्रहत. क्या बोलते हैं? ब्रह्मा स्मृत्वायुर्वेदम प्रजापतिम अजिग्रहत.
मतलब क्या, ब्रह्मा स्मृत्वा, इसका मतलब क्या है कि ब्रह्मा जी ने उसको स्मरण किया। स्मरण हम किस चीज को करते हैं, जो चीज बहुत पहले से है, अनादित्वात्। देन स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात्। देखो, वट एवर दैट वी आर टॉकिंग इन आयुर्वेद, वी आर टॉकिंग अबाउट द थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू नेचर। ठीक है, जो भी है, जो भी हम पंचमहाभूत के कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, जो भी हम द्रव्य ले रहे हैं, जो भी हम औषधि ले रहे हैं, जो भी हम चीजें ले रहे हैं, जो भी हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, दीज आर एट द एंड फ्रॉम द नेचर। देन भाव स्वभाव नित्यत्वात्। मतलब ये जो भाव है, ये जो नेचुरल एंटिटीज हैं जिससे हम आयुर्वेद को लेके चल रहे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, नित्य है। इज तेज अग्नि वायु पृथ्वी गोइंग टू गेट एंड? नहीं, वो नित्य है, वो जैसे थे वो वैसे ही हैं। दे आर गोइंग टू बी देयर, दे आर गोइंग टू बी इन दैट प्रॉपर मोमेंटम। ऊपर नीचे हो सकता है, बट दे आर गोइंग टू बी देयर, राइट? सो दिस इज द रीजन व्हाई आयुर्वेद इज इंटरनल, बिकॉज जिसका where there is no beginning there is no end, अनादित्वात्। भाव स्वभाव नित्यत्वात्, दैट इज जो हम चीजें बोल रहे हैं आयुर्वेद में, दैट इज कि जो हम नेचुरल एंटिटीज से बात कर रहे हैं, जो हम पंचमहाभूत से बात करें, वो खुद इटर्नल है। सो जो शास्त्र इटर्नल चीजों को लेके चल रहा है, वो खुद इटर्नल होगा ही, राइट? देन नेक्स्ट, व्हाट इज अष्टांग आयुर्वेद? ये तो श्लोक सबको बाय हार्ट होता है। What is it? काय बाल ग्रहोर्ध्वांग शल्यदंशा जरावृषान् अष्टांगानि तस्याहु चिकित्सा येषु संश्रिताः। ठीक है, जस्ट सी अबाउट द 8 branches of Ayurveda, just name them down. ठीक है, now we are going to go for synonyms of Ayurveda. तत्र आयुर्वेदः शाखा, विद्या, सूत्र, ज्ञानम, शास्त्रम, लक्षणम, तंत्रम इति। चरक सूत्रस्थान 30. So शाखा, there are 7 synonyms over here that are mentioned in this shloka. Shakha, because it is a branch of Atharva Veda. Vidya, because it is the knowledge का stream है ये. Okay, because it is dealing with both para and apara ज्ञान. It is even dealing with moksha, how to get it. Then सूत्र, जो भी आयुर्वेद में बताया गया है ना, वो बहुत सूत्र भाव में, या फिर यू कैन से बहुत शॉर्ट में, बहुत माइंड, बहुत सारा ज्ञान एक सिंपल से श्लोक में बताया गया है. Then Jnana, knowledge. Shastra, that is authentic text, which is the mere translation of it, but I'll say go with Shastra only. Lakshanam or Tantra. Thank you.